اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 255 اور 256۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت الکرسی والی آیت ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے، لا نہیں، تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، لاہو اسی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور زمینوں میں ہے، من کون ہے، ذلذی جو اس کون ہے جو یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس، الا مگر بے اذن ہی اس کی اجازت کے بغیر، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بینا درمیان ہے، ایدیہم ہم لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون گھیرے ہوئے، بے شیء من علمہ اور اس کے علم میں ہے، ہر وہ چیز جو لوگ کرتے ہیں، الا مگر بما شاء مگر وہ جتنا چاہے کسی کو علم عطا کرے، واسع کرسی وسیع ہے اس کی کرسی جو آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے، ولا اور نہیں، یعودہ حفظہما ان کی حفاظت اس کو تھکاتی بھی نہیں ہے، واہو العلی العظیم، وہ بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی والی آیت ہے، ویسے اس آیت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روایات میں آپ نے امتحاناً صحابہ سے دریافت کیا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت جو سب آیتوں پر بھاری ہے، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ آیت الکرسی، تو آپ نے فرمایا تمہیں تمہارا یہ علم مبارک، یعنی یہ بہت فضیلت والی آیت ہے۔ ویسے قرآن کا اسلوب ہے کہ توحید، رسالت، آخرت سے متعلق عقائد، پھر مختلف احکام شریعہ کو بار بار اس کے بعد دہراتا رہتا ہے، مسلسل عقائد کا ذکر بھی جاری رہتا ہے، نہ متواتر احکام کا، تاکہ ہمارا جو ذہن ہے وہ اکتاہٹ اور تھکاون کا شکار نہ ہو، تاکہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان کرتا ہے ایک چیز کے بعد دوسری، کہ ہمیں پڑھنے میں انٹرسٹ ہو، تاکہ مزہ آئے پڑھنے کا، کہ ہم ایک چیز پڑھ رہے تھے اچانک دوسری آ گئی، پھر کوئی خوشخبری آ گئی، پھر کوئی ڈرانے والی خبر آ گئی، تو یہ اللہ کا اس قرآن کا اسلوب ہے۔ یعنی اگر اس سے پہلی آیات دیکھیں تو اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ نجات کا جو مدار ہے انسان کے اعمال صالحہ پر ہے، نیک اعمال جو لوگ کریں گے وہی جنت میں جائیں گے، پھر قیامت کے دن اس کا مال، اس کی دوستی کالی پڑا ہے، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تمام رسل کے مراتب اور درجات اگرچہ متفادات اور مختلف ہیں، لیکن ان کی دعوتوں کا جو مقصد تھا وہ ایک ہی تھا، اللہ کی وحدانیت، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات دونوں کی جامع آیت آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی ذات بھی ہے، آپ کی صفات بھی۔ پھر اگر ہم اس آیت الکرسی کے جو الفاظ ہیں ان کی تحقیق دیکھیں تو اللہ، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، ذاتی نام اللہ کا ایک ہے، 99 صفاتی نام ہے۔ یہ اللہ کیا ہے؟ اسم ذاتی ہے،
اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ذات جو واجب الوجود قدیم بھی ذات ہے اور صفات کمالیہ کی جامع یعنی تمام صفات اللہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں اور تمام نقائص سے بری اور عبادت کی واحد ذات مستحق ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ الحی، حی کا مطلب ہوتا ہے از خود زندہ ہو، یعنی ہمیں تو اللہ نے زندہ کیا ہوا ہے، ہم تو محتاج ہیں زندگی کے بھی، لیکن اللہ کیا ہے؟ از خود زندہ ہے۔ اس نے کسی چیز کی محتاجی لے کر اپنی زندگی نہیں بنائی، وہ خود ازل سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور اس پر کبھی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ القیوم، از خود قائم ہو، ہمارے ہاں تب تک چیز قائم نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو قائم نہ کریں۔ اس کی مثال آپ نماز کی لے لیں، نماز از خود نہیں ہے، جب پڑھتے ہیں تو وہ قائم ہوتی ہے۔ اللہ لیکن کیا ہے؟ از خود قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہے، جو تمام کائنات کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے، ان کے نظام کی تدبیر فرماتا ہے۔ ایک اور سورہ روم ہے، اس میں اللہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اونگ اور نیند سے بری، تھکاوٹ، سستی کی کیفیت جو ہم پہ طاری ہوتی ہے، تھوڑا سا کام کر لو تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پہاڑ فتح کر لیا، لیکن اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ نیند کا مقدمہ کہ دماغ کے اعصاب کا ڈھیلا پڑ جانا، ہم جب دنیا سے یعنی غفلت برت لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ معنی محال ہے، یعنی اللہ اس چیز سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت کیا ہے؟ محال ہے۔ اس کی عظیم کائنات کا موجم اور اس کے نظام کو جاری رکھنے والا، ہر آن ہر لمحہ کائنات میں تبدیلی تغیر برقرار رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر یہاں پر اب دن نکلا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ادھر تبدیلی ہو رہی ہوگی، سورج ڈھل چکا ہوگا، رات ہو رہی ہوگی، تارے نکل رہے ہوں گے، چاند ہوگا، یعنی یہ تغیر، یہ تبدیلی جو ہر لمحہ ہر وقت ہوتی ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کرتی ہے۔ اور اس کا علم، یہ سب اس کے علم اور توجہ سے ہو رہا ہے، ہر وقت ہر چیز کا، ہر حال کا عالم بے خبر، اور وہ سونے والا ہرگز نہیں ہے۔ پھر آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، تمام آسمانوں زمینوں کی مخلوق اس کے بندے، اس کی ملکیت ہیں، ہر چیز اس کی قدرت، مشیت اس کی مرضی کے مطابق ہے، کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر خود فرماتا ہے، سورۃ المریم کی آیت نمبر 93 ہے، اِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، آسمانوں اور زمینوں میں ہر ایک رحمان کے حضور عبد بن کر حاضر ہوں گے، یعنی غلام بن کر حاضر ہوں گے۔ پھر اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلالت اور اس کی کبریائی کا تقاضا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے حضور شفاعت بھی نہیں کر سکے۔ حشر کے دن تمام انبیاء، رسل، اولیاء، علماء، شہداء اللہ تعالیٰ کے جلال سے سہمے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر فرمائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد کے مطابق شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور لوگوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کے ماضی، حال، مستقبل پر محیط ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کے تمام امور کو تفصیلاً جانتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں، ہم جیسے ایک ذرہ ہوتا ہے، وہ متناہی غیر متناہی، ہم صرف اتنا جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس ذرے پر کتنے بارش کے قطرے پڑیں گے، اس پر کتنی مٹی پڑے گی، کتنی دھول جمے گی، کتنی دیر وہ قائم رہے گا، کتنی دیر قائم نہیں رہے گا، اللہ یہ تمام بھی جانتا ہے۔ اللہ ایک ذرے کی ڈیٹیل اتنی جانتا ہے تو پھر چیز کی ڈیٹیل کتنی جانتا ہوگا۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔ کرسی سے مراد علم ہے، کیا ہے؟ علم۔ اس وجہ سے علماء کو بھی کراسی کہتے ہیں،
या इसीलिए कि इंसान कुर्सी पर टेक लगाता है और एतमाद करता है। उलमा का एतमाद इल्म पर होता है। एक कौल के कुर्सी से मुराद अजमत है, एक कौल कुर्सी से मुराद मुल्क और हुकूमत है। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया गया है कि अल्लाह की कुर्सी तमाम आसमानों और ज़मीनों पर मुहीत है और वो इस तरह चरचराती है जैसे नया पलान सवारों के बोझ से चरचराता है। यानी कोई भी मतलब करें तो इन तमाम से मुराद अल्लाह की कुर्सी है। इल्म करें तो अल्लाह का इल्म है, बादशाही करें तो अल्लाह की बादशाही है, मुल्क करें हुकूमत करें तो अल्लाह की हुकूमत है, अगरचे बैठना भी है तो वो भी अल्लाह ही है। यानी तमाम चीज़ों की महीत किसके सपुर्द है? अल्लाह के। फिर हज़रत इब्न अब्बास से रवायत किया गया इमाम इब्न अल-मंज़र ने कि अगर 7 आसमानों और 7 ज़मीनों को बिछा दिया जाए तब भी वो कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जैसे एक अंगिश्तरी किसी वसी मैदान में पड़ी हो। इतनी वुसअत वाली कुर्सी है अल्लाह की। फिर उसके बाद कुर्सी का वैसे एक मानी किया जाता है कि कोई शख्स बैठने के बाद उसमें जगह ना बचे। जो कुर्सी होती है उसमें और तख्त में फ़र्क होता है। तख्त में जगह इधर उधर से बची होती है, कुर्सी में जगह नहीं बचती। तो कुर्सी पर बंदा टेक लगाकर बैठता है। बहरहाल आसमानों और ज़मीनों की हिफाजत अल्लाह को नहीं थकाती। आसमानों और ज़मीनों की हिफाजत अल्लाह पर भारी और दुश्वार भी नहीं है। अल्लाह के नज़दीक बहुत सहल और आसान सी बात है कि अल्लाह ने इनकी हिफाजत की हुई है। हर वो चीज़ कायम रखने वाला, हर चीज़ का माफिज निगहबान, वो जो चाहता है वो करता है, उसका इरादा अटल है और जिसका वो इरादा कर ले वो उसको ज़रूर भी ज़रूर कर गुजरता है। हर चीज़ पर गालिब, हर शय से बुलंद बरतर और वही सबसे अजीम की प्रियाई और बड़ाई उसकी ज़ेबा है। फिर आयत अल कुर्सी के चंद फ़ज़ाइल हैं कि नबी हज़रत उबई बिन काब से रवायत है, इमाम अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद और इमाम हाकिम रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इम्तिहानन सवाल किया कि किताबुल्लाह की कौन सी आयत सबसे अजीम आयत है, यानी पूरे कुरान पाक में कौन सी आयत अजीम है। तो उन्होंने कहा आयत अल कुर्सी। आपने फरमाया ऐ अबू अल मंज़र, तुमको ये इल्म मुबारक हो। और फिर एक और रवायत आती है, इमाम बुखारी, इमाम निसाई और इमाम अबू नाइम ने दलाइल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात की हिफाजत पर मामूर किया, यानी निगरानी दी कि ज़कात की हिफाजत करो। एक शख्स आया और मुट्ठी भर ताम यानी खाना लेकर जाने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने एक मुट्ठी ताम लिया है। वो रोने लगा, मुझे छोड़ दो। वो अपने यानी कहने लगा कि मैं मोहताज हूँ, मेरे अहल और याल की मजबूरी है, इसीलिए मैं ये लेकर जा रहा हूँ। तो मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी का क्या हुआ था जिसको तुमने पकड़ा था? तो कहते मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी हाजत बयान की, मुझे उस पर तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो झूठा था और वो फिर दोबारा ज़रूर आएगा। अगली रात कहते मैं घाट लगा कर बैठा, वो आया और मुट्ठी पर ताम लेकर जाने लगा। मैंने उसको फिर पकड़ लिया। मैंने कहा अब मुझे यकीन हो गया है तो मैं तुझे ज़रूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उसने फिर कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं हाजतमंद हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, मैं अयालदार हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मुझे उस पर तरस आया, मैंने उसको फिर छोड़ दिया। सुबह फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने कहा कि वो जो है उसने मुझे अपनी और अपने अयाल की जो मजबूरी थी बताई, तो मुझे उस पर तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। आपने फरमाया वो झूठा है, वो आज रात फिर आएगा। कहते मुझे यकीन हो गया कि वो आएगा। मैं घाट लगाकर फिर बैठ गया और फिर जब वो आया और ताम लेकर जाने लगा, मैंने उसको पकड़ा और कहा आज आखिरी बार है और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले जाऊंगा। तो ये कहता है कि मैं नहीं आऊँगा और फिर तू आ जाता है। और उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुमको चंद ऐसे कलामात बताता हूँ जिससे तुमको नफ़ा होगा। मैंने पूछा वो कौन से कलामात हैं? उसने कहा जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयत अल कुर्सी पढ़ना, तो सुबह तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे पास सुबह तक शैतान नहीं आएगा। तो सुबह को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है तो वो झूठा, लेकिन ये बात उसने सच्ची कही है। तो फिर इमाम इब्ने अल-ज़रैस ने हज़रत कतादा से रवायत किया जो शख्स बिस्तर पर लेटकर आयत अल कुर्सी पढ़ता है सुबह तक 2 फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं।
تو یہ तमाम इस कुर्सी यानी आयत अल कुर्सी के फ़ज़ाइल हैं। और यहाँ पर ये वाली रवायत भी हुई है जो हम यकीनन पहले पढ़ चुके हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अनस से रवायत है, जिस शख्स ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत अल कुर्सी को पढ़ा, अल्लाह ताला उसको दूसरी नमाज तक उसकी हिफाजत फरमाएगा। और आयत अल कुर्सी की हिफाजत सिर्फ नबी, सदीक या शहीद ही करता है। और फिर एक वो कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयत अल कुर्सी को पढ़े, उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा और कोई चीज़ माने ना होगी, और वो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। जो फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस आई थिंक कर चुके हैं। तो ये तमाम इस कुर्सी की हदीस हैं। और यहाँ पर एक लफ्ज़ कुर्सी आया हुआ है, तो फिर भाई कुर्सी पर बैठने और चार जानू जो हम बैठते हैं, जैसे तशहद में बैठते हैं, उसके बारे में जवाज़ है। कुरान मजीद से वाज़ह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठते थे। सूरह स्वाद में ये आयत है, 34 आयत नंबर है। वलक़द फ़त्तना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन, बेशक हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा। इमाम बुखारी रवायत करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मैं जा रहा था तो मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी। मैंने नज़र ऊपर उठाई तो देखा जो फरिश्ता मैंने हिरा में देखा था वो आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कुर्सी पर बैठते थे। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं। हज़रत अबू रफ़ा बयान करते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, उस वक्त आप खुतबा दे रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक मुसाफिर आया, वो दीन के मुतालिक सवाल कर रहा है, वो नहीं जानता कि उसका दीन क्या है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए, हत्ता कि मेरे पास आए, एक कुर्सी लाई गई, आप उस पर बैठ गए। मेरा गुमान है कि उसके पाए जो थे वो लोहे के थे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म में से मुझे तालीम दी, दीन की तालीम दी, और फिर आकर अपना खुतबा मुकम्मल किया। ये सही मुस्लिम की पहली जिल्द की रवायत है, यानी कुर्सी पर बैठा जा सकता है। फिर अगली आयत, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द, के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। आयत अल कुर्सी की सिफात बयान की गई। ये बताया कि आसमानों और ज़मीनों की तमाम बादशाही किसके सुपुर्द है, अल्लाह के। उसकी हिफाजत ना अल्लाह को थकाती है ना ही परेशान करती है। हर चीज़ का इल्म। जब इंसान ने यह जान लिया कि फिर उसके इस्लाम कबूल करने, उसकी वहदानियत को मानने से तो कोई चीज़ माने नहीं होनी चाहिए ना, कि अल्लाह की इतनी सिफात कमालिया जो अल्लाह ने आयत अल कुर्सी में बयान की हैं, उससे बढ़कर और क्या होंगी। फिर भी कुछ लोग यानी अपने कुफ्र के अंधेरे में इतने गालिब आ चुके हैं कि उनको ये सिफात नज़र नहीं आती। एक जगह अल्लाह ने वाज़े फरमाया, वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमिया, अगर आपका रब चाहता तो ज़मीन में जितने लोग हैं सब ही ईमान ले आते, सब ही ईमान ले आते। अफ़ अंता तुकरिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, तो क्या आप लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करेंगे। यानी ये अल्लाह की मर्जी थी, अगर चाहते अल्लाह तो तमाम रूए ज़मीन के लोग, चरिंद परिंद, हर चीज़ मोमिन होती, लेकिन अल्लाह ने रास्ते रखे हैं। फिर तो जहन्नुम का तसव्वुर ना होता, जन्नत ही जन्नत होती, हर बंदा नेक होता, नमाजी होता, कुरान पढ़ने वाला होता, अल्लाह की बात मानने वाला, सुनने वाला होता। तो अल्लाह ने ये चीज़ें क्यों रखी हैं, क्योंकि ये दुनिया हमारा इम्तिहान है। क्या है, इम्तिहान है। अल्लाह ने हमें दो रास्ते दिए हैं, एक जन्नत दी, एक जहन्नम दी। अल्लाह ने कहा ये दो रास्ते हैं, दोनों वाज़े कर दिए अल्लाह ने, ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नुम का रास्ता है। फिर अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें अक्ल सलीम भी अता की है। ये जो ऊपर हमारी अक्ल है, ये अक्ल सलीम कहलाई गई है, कुरान पाक में इसको अक्ल सलीम का नाम दिया गया है। तो अल्लाह ने कहा मैंने अक्ल सलीम भी दी, दो रास्ते भी दिए, तुम अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाते हुए जिस रास्ते पर मर्जी तुम्हारा दिल करे चलो, फिर मुझसे उम्मीद न रखना, तुम जिस पर चलोगे मैं तुम्हें वही चीज़ अता कर दूंगा। दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुम्हें थका देगी, लेकिन मेरे पीछे भागोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बात सादा सी है अल्लाह की। तो इसीलिए
अगर आपका रब चाहता तो जमीन में जितने लोग हैं सब भी ईमान ले आते, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर नेक और बद का तस्वुर, झूठे और सच्चे का तस्वुर, अच्छे और बुरे का तस्वुर खत्म हो जाता। तो फिर क्या फायदा था? फिर तो हर बंदा ही नेक होता, अपने आप में वली होता, अपने आप में इल्म वाला होता और जन्नती होता। तो ये चीजें जरूरी थी। ये दुनिया को इतना खूबसूरत रंगों से भरकर अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया है कि तुम दुनिया की तरफ भागते हो या फिर दुनिया में रहते हुए मेरी तरफ भागते हो। फिर अल्लाह कहता है दीन में जबर नहीं है। इसके मुतालिक ये है कि ये आयत उस दौर में नाजिल हुई थी जब कुफार से जिहाद और किताल का हुक्म अभी यानी इब्तदा इस्लाम में, और फिर उनकी ज़्यादतियों पर जब माफ़ी और दरगुजर कर दिया जाता था और उनकी बुराई को अच्छाई से दूर करने का उम्दा तरीका ये था कि उनसे बहस करो, और अगर जाहिल मुसलमानों से बात करें तो क्या करो, तुम सलाम करके साइड पे हो जाओ। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी। लेकिन फिर बाद में दूसरी आयत भी अल्लाह ने फरमाई, जैसा कि सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 73, या अय्युहन नबी जाहिदल कुफारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम, ए नबी काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए, उन पर सख्ती कीजिए। फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैस वजदतुमूहुम, सूरत अत-तौबा की आयत, बस तुम मुशरिकून इनको जहाँ भी पाओ उनको क्या करो, कत्ल कर दो। यानी दीन में जबर वाली आयत भी अल्लाह ने पहले नाजिल की, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने और की कि उनसे जिहाद करो, किताल करो और उन पर सख्ती करो को वे इस्लाम ले आए। इसमें इमाम बुखारी की रिवायत आई हुई है, सही बुखारी की पहली जिल्द की, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लोगों से किताल करने का हुक्म दिया गया है, हत्ता कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे दे। जब वो ऐसा कर लेंगे तो वो मुझसे अपनी जानों और मालों को महफूज कर लेंगे, माँ सिवाय हक के इस्लाम के, और उनका हिसाब अल्लाह पर है। तो ये तमाम चीज़ें यानी अल्लाह ताला ने पैदा की, लेकिन वाकई दीन में जो है वो सख्ती जबर नहीं है। ये है कि आप दावत दें, और मोमिन की शान है कि वो क्या करता है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये मोमिन की पहचान है। उसके बाद अगली आयत, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह वलियुल्लज़ीना उन लोगों का मददगार है, आमनू जो ईमान ले आए, युखरिजुहुम उनको अल्लाह ने निकाला, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर अंधेरों से रोशनी की तरफ, वल्लज़ीना और जिन लोगों ने काफरू कुफ्र किया, औलियाउहुमुत तागूत तो उनके दोस्त कौन हैं, शैतान हैं, युखरिजूनहुम वो उनको रोशनी से निकाल कर किधर लेकर गए, इलज़्ज़ुलुमाति अंधेरे की तरफ, उलाइका अस्हाबुन नार वही लोग दोज़खी हैं, हुम फ़ीहा ख़ालिदून उसमें हमेशा रहेंगे। तो गुमराही और हिदायत वाज़े हो चुकी है, हर बंदा जानता है गुमराही का रास्ता कौन सा है, हिदायत का रास्ता कौन सा है। लेकिन फिर उसके बाद जो है लोग ईमान क्यों नहीं लाए, उसकी वजह कि ईमान की दौलत अल्लाह की तौफीक से नसीब होती है। जिन लोगों ने शयातीन से दोस्ती कर रखी वो अल्लाह की तौफीक से भी महरूम हो गए और शैतान ने उन्हें कुफ्र के अंधेरों में धकेल दिया। वली का मानी क्या होता है, मददगार, मुहिब, कारसाज। अल्लाह मोमिनीन का मुहिब है या मददगार है या कारसाज है। इस आयत में फरमाया अल्लाह मोमिनों को जुल्मात से नूर की तरफ निकालता है कि मोमिन तो ईमान की वजह से पहले ही नूर में है, तो फिर अल्लाह ने यहाँ पर यह क्यों फरमाया कि अल्लाह इनको जुल्मात से निकालता है। इसका जवाब यह है कि यहाँ इखराज के दो मानी हैं, एक हकीकत और एक मजाजन। हकीकत मुराद हो तो ईमान वालों से मुराद है जिन्होंने ईमान लाने का इरादा किया, उनको अल्लाह कुफ्र के अंधेरों से ईमान के नूर की तरफ निकालता है। और दूसरा मानी अल्लाह मोमिनों को उनके नफूस जो है, नफ्स हैं, उसको जुल्मानियत से किसकी तरफ लेकर आता है, अदाब शरीयत की तरफ निकालता है, यानी उनकी रज़ा, सिद्क, तवक्कुल, मार्फत, मोहब्बत इलाही की राह में डाल देता है। तो अल्लाह मोमिनीन का वली भी है,
दोस्त भी है, मददगार भी है, उनसे मोहब्बत रखने वाला भी है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके दोस्त तागूत हैं, वो उनको रोशनी से अंधेरों की तरफ निकालते हैं। यानी कुफार को नूर से निकालने के महमिल कि कुफार के लिए नूर कब साबित हुआ, वो तो पहले ही अंधेरे में हैं, यानी काफिर हैं। तो अल्लाह ने यह क्यों कहा कि उन्हें नूर से निकालकर जुल्मत की तरफ लाया गया। तो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद हज़रत ईसा की कौम के वो लोग हैं जो हज़रत ईसा पर ईमान लाए, फिर शैतान के बहकावे में आकर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, तो फिर आपके साथ उन्होंने कुफ्र किया, यूं वो नूर से निकल कर किस में आ गए, अंधेरे में आ गए। दूसरे लोग वो मुराद हैं हज़रत मूसा पर ईमान लाए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले आपके वसीले से फतह की दुआएं मांगते रहे, उनकी दुआएं भी कबूल होती रहीं। फिर जब आप मबूस हुए तो शैतान के बहकावे में आ गए और आप पर ईमान ना लाए, तो फिर हुए ना वो अंधेरे में। तो तागूत का मानी क्या होता है, तग़यान से माखूज है। इसका मानी किसी चीज़ की हद से तजावुज़ करना। ये लफ्ज़ असल में मलकूत की तरह, इसमें ता ज़ाइद है, यानी इससे मुराद शैतान है। कौन है, शैतान। तागूत 4 हैं, कितने हैं, इब्लीस लानतुल्लाह, सबसे पहला शैतान है जिस पर अल्लाह की लानत है। दूसरा वो शख्स जो अपनी इबादत किए जाने पर राजी हो, यानी वो ये सोचे कि मेरी इबादत की जा रही है और वो उसी पर राजी हो, वो ये ना कहे कि अल्लाह की इबादत करो, यानी वो अपनी इबादत करवाई जाए। और दूसरा वो शख्स जो लोगों को अपनी इबादत के लिए दावत दे कि मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, अल्लाह की ना सुनो, तो वो भी कौन है, तागूत है। चौथा, जो शख्स वही इलाही के बगैर इल्म गैब का मदई हो। नजूमी और काहिन जो होते हैं, जो कहते हैं हम इल्म गैब रखते हैं, इल्म गैब यानी आने वाला कल बताना, यानी उन्हें कोई वही तो नाजिल नहीं होती ना, वही तो अल्लाह ने सिर्फ नबियों रसूलों पर अता की ना। तो अब तो इस दुनिया में कोई नहीं है ना ऐसा दावेदार जो कहे कि मुझे वही होती है, मैं जानता हूँ आने वाले कल में क्या होने वाला है, बारिश कब होगी, जलजला कब आएगा, और तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी शादियाँ होंगी, कितनी तलाक़ें होंगी, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, कितने बेटे होंगे, कितनी बेटियाँ होंगी। ये जो लोग बताते हैं ये यानी इनके ऊपर कोई वही तो नाजिल नहीं होती, यानी ये इल्म गैब के मदई है ना, यही इल्म गैब है ना। तो नजूमी और काहिन के पास जो होता है इल्म, तो वो भी तग़यान यानी शैतान के हमसर है। अल्लाह ने जो चीज़ अता नहीं की उसका दावा करना। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह में सही समझने की तौफीक अता फरमाए और जो हम पढ़ते हैं उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।